So we have to talk in this slide about fluid energy mill. Fluid energy mill is known as pulverizer, micronizer or jet mill. It is used for fine grinding and close particle size control. Principle, it works mainly on the principle of combined attrition and impact. So attrition and impact पे काम करता है ये. Okay? Attrition and impact का मतलब क्या होता है कि attrition का मतलब होता है ना कि मतलब एकदम पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के साथ या मैं बोल सकता हूँ विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे आर हैविंग सम कोलिशंस एंड उसकी वजह से फ्रिक्शन होने की वजह से दे आर एक्चुअली गेटिंग देयर साइज रिड्यूस्ड. एंड इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि भाई उन लोग अच्छा खासा एक दूसरे से कोलिशन करके एक दूसरे को टक्कर वक्कर मार के जैसे कुछ हो रहा है. तो डायग्राम अभी फ्लूइड एनर्जी मिल का देखते हैं अपन. दिस डायग्राम मतलब दीज आर द नोजल्स थ्रू विच द फ्लूइड इनलेट विल बी देयर. मतलब फ्लूइड इनलेट एज इन कंप्रेस्ड एयर. ठीक है, इधर से अपना प्रॉपर रॉ मटेरियल जाएगा. Because of this, these will be set up into motion into an elliptical loop. So the raw materials because of these nozzles will be set up into an elliptical nozzle or elliptical path. Okay. ठीक है, so we'll continue with the further rate. ठीक है, अपना जो फ्लूइड एनर्जी मिल का वीडियो है अपना देखना नहीं पहले, तो हम लोग को पहले कंप्लीट करना है कि फ्लूइड एनर्जी मिल का मतलब क्या होता है. अभी अपने को देखना है. The fluid energy mill consists of a loop of pipe with a diameter of about 20 to 20 millimeters depending on the overall height of the loop, which may be about 2 meters. An inlet material feed by which the solid material is introduced into a chamber which is made up of stainless steel. Obviously the reason behind be making us the feed entry of stainless steel, क्योंकि हम लोग पता है कि stainless steel offers some sterility. मतलब स्टेनलेस स्टील को स्टरलाइज करना है वेरी इजी रादर. तो और क्या है ना कि वो कंटामिनेशन प्रिवेंट करता है. उसमें से कैसा है ना कि उसमें से कुछ शेड नहीं करता. वही अगर आपने कुछ कॉन्क्रीट का रखा होता है मे बी, या फिर उसमें जैसे छोटे छोटे टाइनी स्टोन्स निकलते हैं कॉन्क्रीट रखा होता तो वुड रखते तो वुड गल जाता तब तक. सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज डिजायरेबल. The nozzle by which the air and the inert gas is introduced into the chamber at high pressure. An outlet with a classifier which allows the air to escape but prevents particles to pass until they become sufficiently fine. तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा है फ्लूइड एनर्जी मिल के अंदर कि व्हाट इज अ फ्लूइड एनर्जी मिल. मतलब हम लोग उसको क्या क्या बुला सकते हैं, मेजर बुला सकते हैं, माइक्रोनाइजर बुला सकते हैं, कुछ भी बुला सकते हैं, जेट मिल भी बुला सकते हैं. एंड दूसरा हमने पढ़ा कि भाई इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड अट्रिशन, मतलब कोलिशंस एंड फ्रिक्शन. देन हमने पढ़ा कि भाई एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर, कौन से कंपोनेंट्स हैं. वर्किंग में देखा अपन ने. In operation of fluid energy mill or an inert gas is introduced with a very high pressure through the nozzle. Solids are introduced into air stream through the inlet. Due to the high degree of turbulence, impact and accretional forces occurs between the particles. The fluid effect transports the particles to a classification zone with the size classifier retains the particles until sufficiently fine to be removed. The fine particles are collected through a classifier. The particle size and shape are determined. तो मैं तुझे क्या बोल रहा था कि वही सेम थिंग है. ठीक है ना, इसमें कुछ है नहीं. तो पार्टिकल साइज है डिटरमाइंड. अभी द स्पीड ऑफ द एयर, इनर्ट गैस, फीड रेट एंड साइज एंड ऑल दो स्टफ. अभी देखो ये सब चीज़ें हैं जो बेसिकली डिटरमाइन करती हैं पार्टिकल साइज. एप्लीकेशन ऑफ द फ्लूइड एनर्जी मिल. The method is used where especially fine powders required. In example, antibiotics, sulfonamides and vitamins. The mill is used to grind thermolabile material to fine powder. करेक्ट है, इसमें कुछ मूविंग मटेरियल तो है नहीं, इसमें आप कुछ हीट भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो. The mill is used for the fine grinding of fritz, kaolin, zircon, titanium. Is also an object to provide grinding of dry solids. Merits of fluid energy mill. The smaller particle size than that produced by any other method of size reduction is achievable. मतलब ऐसा साइज रिड्यूस करेगा ये जो कोई भी मिल आपको कम करके नहीं दे सकता. Now size reduction of thermolabile materials can be done with little degradation since the heat produced by the process is nullified by the cooling effect of the expansion of the compressed gas. इसका मतलब क्या होता है कि नीचे से जो compressed गैस आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में रहती है. और ऑब्वियसली किसी हीटिंग चेम्बर के अंदर, अभी देखो किसी चेम्बर के अंदर अगर आप फ्रिक्शन करवा रहे हो, अगर आप कोलिजन्स करवा रहे हो तो हीट प्रोड्यूस होने वाला है. अब इसके अंदर अगर आप कंप्रेस्ड एयर डाल देते हो, ठीक है ना, एक कंप्रेस्ड एयर का पूरा एक जा रहा है, एक स्ट्रीम जा रही है, तो उससे क्या होगा, द इमीडिएट एक्शन बिकॉज ऑफ दैट विल बी कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा.
समझ में आ रहा है? एयर डालोगे तो कूलिंग इफेक्ट ऑब्वियसली होगा, करेक्ट है। देन बाद में क्या लिखा है, यूजफुल फॉर ग्राइंडिंग हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस सच एज सल्फोनामाइड्स, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। There is no wear of the mill and hence there is no contamination of the product. It is possible to use inert gases for very sensitive materials. The particle size and the particle size distribution of the powder can be controlled due to the use of classifier. The mill is used to grind the materials. Classifier का मतलब क्या ऐसा होता है ना कि अगर वो पार्टिकल साइज जो है, जो अपने को चाहिए, वो अगर रिड्यूस नहीं हुआ है, उस हिसाब से अगर रिड्यूस नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो कि इन ऑर्डर टू चेक कि आपके हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है क्लासीफायर के ऊपर, वो क्लासीफायर ही ऐसा एक चीज़ होती है जिसके अंदर सेपरेटर रहता है, एक पर्टिकुलर साइज़ आप सेट करके रखते हो उसके अंदर। तो अगर आपका एक मटेरियल, मतलब अगर आपके रॉ मटेरियल ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है और तो भी क्लासीफायर के अंदर घुस जाता है, तो क्लासीफायर मेक श्योर करेगा कि आपका जो मटेरियल जो घुसा है अंदर, दैट इज रिटर्न टू द साइकिल, रिटर्न टू द फ्लूइड एनर्जी मिल। वो फ्लूइड एनर्जी मिल के अंदर वापस आ जाएगा नीचे एंड विल बी अगेन रिड्यूस्ड एंड अगेन विल पास टू क्लासीफायर, अगेन वो चेक करेगा एंड ऑल दिस स्टफ। तो हमने पहले भी बहुत सारे क्लासीफायर्स पढ़े हैं, जैसे कि इफ़ यू रिमेंबर, वो एक वी हैड अ कोनिकल स्ट्रक्चर, मेरे को उसका प्रॉपर नाम नहीं याद आ रहा, साइक्लोन सेपरेटर, करेक्ट। साइक्लोन सेपरेटर जो होता था बेसिकली, उसमें एक कोनिकल स्ट्रक्चर होता था जिसके अंदर हम टेंजेंशियली along the raw materials एक compressed air डालते थे and that used to swirl, करेक्ट है। वो swirling वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते थे वो swirl के साथ चले जाते थे एंड तो बड़े मोटे मोटे पार्टिकल्स होते थे वो नीचे गिर जाते थे, सेटल हो जाते थे रादर, करेक्ट है। और जो एयर होती थी, जो swirl कर रही होती थी, वो निकल जाती थी ऊपर से बिकॉज ऑफ इट्स लाइटनेस, करेक्ट है। तो दिस इज हाउ अ क्लासीफायर वर्क्स। और ऊपर से मैंने ये भी बोला है कि भाई द मिल इज यूज्ड टू ग्राइंड द पार्टिकल्स टू फाइन पाउडर, होमोजेनियस ब्लेंड, इजी टू सर्लाइज। अब डी मैनेज क्या है बेटा कि हाई एनर्जी कंज्यूमिंग, क्यों, मेरे को नोजल्स को आपको पार करना पड़ता है, ऊपर से फिर मेरे को नोजल्स के अंदर से अपने को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में अपने को एयर पास करवा रही है। थिंग हाईली हेड स्पेस है और नॉट सुटेबल फॉर हाई हेड स्पेस का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है ये एक्चुअली में, फ्लोरिंग स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता है, तो इट्स अ बल्क मशीन and not suitable for soft, sticky and fibrous materials. Obviously, tendency of forming aggregates or agglomerates after milling. Generation of amorphous content due to high energy impact. Avoid post materials into the chamber and the feed device may be clogged with the clump materials. ठीक है, बट ये एक आपको टेक अवे क्या है कि आप सॉफ्ट स्टिकी मटेरियल निकाल सकते हैं और हाई हेड स्पेस है और हाई एनर्जी कंज्यूमिंग, दीस आर द थिंग्स दैट यू कैन टेक। तो बन जाते हैं डीह्यूमिडिफायर के ऊपर। डीह्यूमिडिफायर इज रिमूव्स वाटर वेपर फ्रॉम द एयर इन दैट एरिया। तो डीह्यूमिडिफायर का मतलब ये होता है, डीह्यूमिडिफायर मतलब ह्यूमिडिटी उस पर्टिकुलर एरिया से निकालना, तो वही हम बात करेंगे अभी। तो डीह्यूमिडिफायर है क्या है, मतलब उसका रिमूव्स वाटर वेपर फ्रॉम द एयर इन दैट एरिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीह्यूमिडिफायर, कंपोनेंट्स ऑफ डीह्यूमिडिफायर, कूल्ड इवेपोरेटर कॉइल्स, वार्म कंडेंसर कॉइल्स, अ फैन एंड रिजर्वायर और ड्रेन टू कैच वाटर। So dehumidifier removes water vapor from the air in that area। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ कंडेंसर कॉइल, मतलब कोल्ड इवेपोरेटर कॉइल। हम देखेंगे क्या है इसका मतलब, क्या एग्जैक्टली सो वर्किंग क्या है, बिकॉज हमने कभी डीह्यूमिडिफायर अपने पोर्शन में पढ़ा नहीं है, सो थोड़ा ध्यान से रखना। ये तो ऊपर वाली चीज़ें जो एक दो चीज़ें थी उन्होंने ऑब्वियसली पोर्शन में कवर करके रखी थी, ऑफ विच वन वॉज अ फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, नॉट ड्रायर, सॉरी फ्लूइडाइज क्या, फ्लूइडाइज एनर्जी मिल, सॉरी, करेक्ट। अभी डीह्यूमिडिफायर तो हमने कोई पढ़ा नहीं है। सो अ डीह्यूमिडिफायर यूजेस रेफ्रिजरेशन प्रिंसिपल सेम एज द वे ऑफ एयर कंडीशनर, but it does not cool the air. In fact, it warms the air slightly. Warm humid air from the structure is drawn into the cold dehumidification coil of the dehumidifier. Then the temperature of the air is lowered below the dew point condition and water is collected on the dehumidification coil. So in the dehumidification process, heat is produced as water vapor, because water vapor becomes a liquid. This liquid heat is then collected by the refrigerant system along with the heat taken from the entering air stream. Along with the latent heat energy used to operate the refrigerating compressor is also collected as end heat energy and added to the refrigerant. Latent heat in compressor heat is then transferred by the refrigerant system to the condenser coil of the dehumidifier, where it is added back into the air stream. This is rather थोड़ा सा ये हो सकता है कि नहीं समझ में आए,
सो थोड़ा सा हम लोग होना चाहिए इसके पहले, ठीक है। लेट्स ब्रेक डाउन एवरीथिंग, ठीक है। तो ये मैंने मतलब एक यूट्यूब वीडियो से आपको समझाने वाला हूँ कि डीह्यूमिडिफायर कैसे वर्क करता है। अब अगर हम लोग इसको कंसिडर करें, सबसे पहली बात तो हम लोग को वेपर कंप्रेशन साइकिल सीखना पड़ेगा। तो इस वेपर कंप्रेशन साइकिल, जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर हमारी एक कंप्रेस्ड एयर रहती है। तो बेसिकली हमारे पास कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग को वेपर कंप्रेशन साइकिल सीखना पड़ता है। तो उसमें कैसे होता है कि जो कंप्रेसर रहता है, कंप्रेसर इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ अ रेफ्रिजरेंट। अब वो रेफ्रिजरेंट जो रहता है दैट इज़ इन अ गैस फॉर्म, ओके। वो रेफ्रिजरेंट जो गैस फॉर्म में रहता है वो मतलब लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में रहता है। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? अभी ये जाएगा, मतलब कहाँ पर जाएगा, आई जस्ट शो इट टू यू हाउ इट इज़ डन। ये जो कंप्रेशन है ये कैसे होगा, दिस विल लाइक मतलब ये कंप्रेसर जो है इस लो टेम्परेचर हाई लो प्रेशर वाली गैस को कंडेंसर कॉइल में भेज देगा। अब जैसे ही वो कंडेंसर कॉइल में भेज रहा है, करेक्ट है, कंडेंसर कॉइल में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये गैस की हीट निकल जाती है। जैसे ही इस गैस की हीट निकल जाती है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो रहता है फ्रॉम द कंडेंसर कॉइल इट पासेस टू इवेपोरेटर कॉइल, करेक्ट है। तो इसे समझना पड़ेगा कि कंप्रेसर ने इस कंप्रेस्ड, हाँ तो मैं तुमको बता रहा था कि ये जब वेपर, अगर आप सोच रहे होगे कि ये थिंग जो है मतलब ये तो मतलब अपना लो टेम्परेचर लो प्रेशर का गैस था, ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर का गैस हाई टेम्परेचर का गैस कैसे बन गया। सो कंप्रेसर का काम वही होता है कि टू कन्वर्ट दी लो टेम्परेचर लो प्रेशर गैस इनटू अ, मतलब उसको कंप्रेस करके ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जो है कंडेंसर कॉइल में जब ये एंटर करती है तो कुछ ऐसा चीज़ होती है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से इस हाई टेम्परेचर हाई गैस की हीट निकल जाती है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। जैसे लिक्विड पास करता है टू इवेपोरेटर, ठीक है, इवेपोरेटर में जैसे जैसे पास होता है एंड अगेन जो मतलब इसको ये क्या बोलते हैं ना उसको, अगेन इधर से कोई ना कोई हीट ले लेता है जिसके वजह से अगेन ये इसकी हीट किधर से कोई ना कोई ले लेता है जिसकी वजह से ये अपना लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाली गैस बन जाता है एंड अगेन इट इज पासिंग टू द कंप्रेसर एंड देन द साइकिल इज दिस इज कॉल्ड ए वेपर कंप्रेसर साइकिल, ठीक है। तो हाँ मैं एक फंबल कर गया यहाँ पर कि जो ये हमारा इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर कॉइल्स है हमारे पास, ये सब कॉइल्स है ना। तो इवेपोरेटर कॉइल्स में जब ये हमारा एक्चुअली मैं आपको वापस एक बार साइकिल एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक सम फंबलिंग हैज टेकन प्लेस हियर। सो व्हाट हैपेंस रादर, इसमें कैसे होता है, सबसे पहली बात तो हमारे पास एक कंडेंसर है जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ पर गैस फॉर्म में, दैट इज़ लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस जो है यहाँ पर एंटर करता है। उसको कंप्रेस करके हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो हमारा मॉइस्ट एयर है, ठीक है, व्हेन दैट मॉइस्ट एयर बेसिकली विल बी कन्वर्टेड इनटू ड्राई एयर इन दिस पार्ट, व्हेन दिस ड्राई एयर बेसिकली पासेस टू दिस कंडेंसर, ये क्या होगा कि ये जो कॉइल है, ठीक है ना, ये अपना टेम्परेचर दे देगा इस ड्राई एयर को, ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ high and this will be converted into a high pressure low temperature liquid, करेक्ट है। फिर ये जाएगा इसमें आ जाएगा और फिर इधर से अपना जो प्रॉपर मॉइस्ट एयर जो पार कर रहा होगा ये क्या करेगा, जो ऑब्वियसली इसके अंदर हीट होगी मॉइस्ट एयर के अंदर, तो वो हीट बेसिकली गिव अप कर देगा इस रेफ्रिजरेंट के पास एंड व्हाट विल हैपन, दिस गैस विल बी गेटिंग जनरेटेड or low temperature and low pressure and then the cycle continues.